Good morning. So I'm going to give a brief, and I really want to welcome Mr. Laval Dhawan. He's a young, energetic, and dynamic art of living teacher. He is QCI certified level 3 yoga trainer. He is a craniosacral therapist trained under Dr. Bentley, Germany. He is a motivational speaker. And honestly, I want to share my personal experience with him. Like I was suffered with a very bad cervical condition. And just in 3 sessions, he recovered me from that particular problem. So I really feel good that I'm inviting him in presence of all of you, and he's with us. So a brief about him, I just want to explain. He was involved in the Vibrant Amritsar project in collaboration with Punjab government, focus on drug de-addiction activity for urban as well as rural youth. He was regional head for VBI, Voluntary for a Better India, leading a team of voluntary who motivate and mobilize the urban and rural youth to exercise their right to vote. He has been invited to conduct workshops at many leading universities of India, Nepal, and Indonesia, including the largest university, University of Indonesia, University of Jakarta, and University at Bali, and Delhi University, and IMT Ghaziabad, and Kathmandu. So I really invite him for, and I hand over my request so that he can start on behalf of Guide My Diet. So thank you and welcome all the participants. Over to you, Mr. Laval. And Thank you very much, Dr. Jagmeet. Yes. Thank you for that wonderful welcome. मुझे तो I was for a moment thinking कि मेरे बारे में introduction हो रहा है या मैं गलत meeting में आ गया हूँ शायद. You deserve that thing actually. Thank you very much. All right. So before starting the session start करने से पहले I would request all my guests, आप please आपका camera on कर दीजिए. तो उससे क्या होता है whenever I'm talking to you, मुझे लगेगा कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ. Otherwise it feels I'm talking to a blank wall. Just imagine मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ऐसे अगर मैं बात करूँ, I talk to you like this. Would you like it? हाँ ना बोलिए. पसंद आएगा आपको अगर मैं आपके साथ ऐसे बात करूँ, ऐसे इंटरेक्ट करूँ? You want to see my face while I talk to you? Yes? है ना? Thank you Rubina जी. Thank you. Thanks a lot. Dr. Sandeep. Chef. संदीप जी आप शेफ हैं? Or is that your name? No, sir. I'm a chef. Wow. I'm in a uniform right now. Great. I'm already in love with you because I'm a foodie. I really. आप बाद में please आपका नंबर मेरे साथ शेयर करिए. All right. तो बाकी लोग भी अगर आप comfortable हैं, कई बार क्या होता है, it's morning time, Sunday morning, आप international sleeping attire में होते हैं, so you're not comfortable sitting on the campus. I understand. अगर आप क्विकली चेंज करके या फिर ऐसे ही आ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा. आई रियली एंजॉय लुकिंग एट द फेसेस एंड लुकिंग एट योर एक्सप्रेशंस व्हाइल आई एम टॉकिंग. All right, thank you very much. So before starting the session, I would want to know, see, you have one of the bestest dietitians with you, Dr. Jagmeet. I've been in touch with her personally. She's one of the bestest dietitians in the market right now. ये होने के बावजूद भी आपके पास इतने अच्छे डाइटिशियन हैं जो आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कितना खाना है. वो सब होने के बावजूद भी समटाइम्स बात नहीं बनती है. You don't reach that goal that you want to achieve. You don't lose that amount of weight that you want to lose. Can somebody tell me ऐसा क्यों होता है? Why is it happening with you? पहली बात, ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ कि ना? नहीं हो रहा तो we'll not talk about it. Is it happening with you? This is how you say yes. ओके. संजय जी बोल रहे हैं हाँ. रंजना जी आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है? आपके साथ भी हो रहा है? मेरे साथ भी होता है. सबके साथ ऐसा ही होता है. ठीक है. नाउ आई वांट टू नो द रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाई? यू विल हैव टू अनम्यूट और मुझसे बात करनी पड़ेगी आपको, या फिर आपको
चैट बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, बट आई वॉन्ट यू टू इंटरैक्ट विद मी। रंजना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, आप सुन रहे हैं, बट आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, आई रियली वांट योर इनपुट। क्या ऐसी चीज है, देखिए आप सब डाइट फॉलो कर रहे होंगे, आपके पास अच्छे डाइटिशियन है, अच्छी डाइट है और वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि डाइट काम नहीं करती है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ऐसा आप मानते हैं? जैसा आपको रिजल्ट चाहिए, जैसी आपको बॉडी चाहिए, जैसा आपको जीरो फिगर चाहिए, जैसे आप कटरीना कपूर या फिर सलमान खान दिखना चाहते हैं वैसे नहीं दिख पा रहे हैं, वो कुछ तो रोक रहा है, वो कुछ क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। वो तो लैक जो है वो अपनी साइड पर ही है, यस, लैक ऑफ एक्सरसाइज ओके, गुड, वेरी गुड। एंड समटाइम्स डाइट से थोड़ा डिफर हो ही जाता है, थोड़ा डिफर हो जाता है, यस, हाँ। ओके। और It is all about तो वही है, domination. हाँ, संदीप जी क्या बोल रहे हैं? It is domination. डिटर्मिनेशन, यस, कंप्लीटली एग्री विद यू। हाँ, नवजोत जी बहुत खुश हो गए डिटर्मिनेशन सुन के। ओके, और कुछ एनीबॉडी वुड वांट टू ऐड बिफोर आई टेक इट फर्दर? किसी को और कुछ शेयर करना है? कुछ it depend upon body to body. डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी, बट नवजोत जी मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। कैसी भी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, यू आर बॉर्न टू बी हेल्दी। भगवान ने आपको एक हेल्दी जीवन जीने के लिए बनाया, उसको खराब अगर किया है तो मैं मानता हूँ हमने ही किया है। दैट इज माई बिलीव। बॉडी अलग है, बॉडी के लिए डाइट अलग हो सकती है, दैट्स व्हाई वी हैव डाइटिशियंस। वो आपकी पर्टिकुलर बॉडी टाइप देख के आपको आपके लिए जो परफेक्ट डाइट है वो देते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं होता है? नहीं, वही तो इस सेशन में आपके लिए आने का हम वही तो एक बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जानना चाहते हैं, डू यू वांट मी टू टेल यू क्यों नहीं हो रहा है? तो थोड़ा आपको एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा ऐसे सीधे होकर बैठना पड़ेगा, अटेंटिव बैठना पड़ेगा, स्माइल। आप ऐसे बैठे रहेंगे जैसे क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देख रहा है, चलो बोल रहा है, तो नहीं चलेगा। थोड़ा आपको मुझे, हाँ, थैंक यू सिद्दीकी जी फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरा, आई रियली लाइक लुकिंग एट योर फेसेस। ठीक है, तो वो पता है क्यों नहीं हो रहा है? एक चीज है, देखिए आप जब कभी भी आपने बहुत बार जीवन में बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन लिए होंगे। आई एम श्योर। सॉरी, मेरा सीरी अपने आप से ऑन हो गया। तो आपने बहुत बार अपने जीवन में रेजोल्यूशंस लिए होंगे, कल से मैं ये डाइट फॉलो करूंगा, परसों से मैं जिम जाऊंगा, ये से मैं ये करूंगा। बहुत बार आपने रेजोल्यूशन लिए होंगे और पहले 2-3 दिन 4 दिन शायद फॉलो भी किया होगा एकदम अच्छे से। एक हफ्ता फॉलो करने के बाद आपको क्या लगता है? चलो एक स्कूप आइसक्रीम तो चलता है, इतनी छोटी सी चॉकलेट तो खा ही सकते हैं, संडे को चीट डे होता है, आज तो चीट कर ही सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है, वो एक स्कूप आइसक्रीम 2 स्कूप बन जाता है, 2 से 3 बन जाता है, और धीरे धीरे कब एक पूरा ब्रिक बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। कुछ लोग के साथ शायद हुआ भी हो ऐसा, मेरे साथ बहुत बार। बट इट हैपेंस व्हेन यू आर इन स्ट्रेस। एग्जैक्टली, करेक्ट रंजना जी। सो व्हाई इट हैपेंस? जब आपकी एनर्जी लो होती है, आपके जीवन में जब आप लो होते हैं, लो एंथुसियाज्म, लो एनर्जी, लो प्राणा, तब आपका जो डिटर्मिनेशन है वो भी कम हो जाता है। अब देखिए, कभी अगर आपके जीवन में एनर्जी हाई हो, आप मोटिवेटेड रहें, तो आप कुछ भी अचीव कर पाते हैं, वो लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम में। आपने देखा है ये, अगर आपके अंदर एनर्जी हो, आप कुछ भी कर देते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो टेम्पटेशंस हैं उनको अच्छे से रेजिस्ट भी कर पाते हैं when you have high prana in your body, high energy in you. Do you all agree with me? Yes? Yeah. जितने भी लोग, अगर कुछ लोग यहाँ पे स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, आप देखिए जब आप खुश हैं, जब आप एनर्जेटिक हैं, जब आप हाई ऑन प्राणा है, तो आपको वो अर्ज नहीं आती है स्मोक करने की। या जब आप बहुत थक जाते हैं, जब आप लो हो जाते हैं, बहुत काम हो जाता है, फिर आप बोलते चल यार एक लगा के आते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी। Am I right? अगर आप स्मोक करते नहीं करते तो आपको पता नहीं होगा, because I've been working with a lot of addicts, so I know the psychology how it works. तो am I making sense? जब भी प्राणा लो होता है, जब भी एनर्जी लो होती है, तब you are tilted more towards giving in to your cravings. ठीक है, अब इसका solution क्या है? How can we get rid of this problem? How can we increase the prana, increase the energy in the body?
तो उसके लिए वी हैव 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारे ह्यूमन बॉडी को 4 सोर्सेज से एनर्जी मिलती है, 4 स्रोत से। वुड यू वांट टू गेस क्या क्या है? आप गेस करना चाहेंगे? उमेरा जी वांट्स टू से समथिंग। Is the atmosphere? Atmosphere makes Atmosphere, your surroundings. yes, surrounding is correct. मैं इसको थोड़ा और कंसंट्रेट करके करेक्ट वर्ड पर लेके आऊंगा बाद में। राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर द वेरी बेसिक आंसर, जो बिल्कुल एलिमेंट्री। आपको ताकत कहाँ से मिलती है? द बेसिक ये है। Food we eat. हाँ, Food we eat. फूड वी ईट, करेक्ट। सो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड, खाना। ठीक है, नाउ उसमें भी थोड़ा झोल है। अब आपने सुन लिया खाने से एनर्जी मिलती है, तो क्या ऐसा है? अभी लेट्स से मोस्ट Right type of food. राइट टाइप ऑफ फूड एंड राइट, अभी बताता हूँ क्या। सो आई एज्यूम मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब। ज्यादातर लोग पंजाब से हैं। पंजाबी ही है। हाँ, सब पंजाबी हैं। ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, आज संडे है, तो संडे को पंजाब में नेशनल ब्रेकफास्ट क्या होता है? नॉर्मली ऑल किचन्स डोंट कुक, मदर्स वांट अ ब्रेक। तो सुबह सुबह क्या होता है? पूरी छोले या फिर छोले भटूरे आ जाते हैं, और वो भर पेट खाने के बाद, फूड इज इक्वल टू एनर्जी, राइट? सो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ छोले भटूरे विद लस्सी का ग्लास, इतना बड़ा पंजाबी ग्लास। वो खाने के बाद आपको एनर्जी आती है कि एनर्जी जाती है? क्या होता है? बहुत एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, Loss of energy is there. लॉस ऑफ एनर्जी। बट आप अभी तो बोल रहे थे फूड इज इक्वल टू एनर्जी। फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इट इज अ लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। वो आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक एनर्जी देता है तब जब आप सही खाना सही अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, आप सही अमाउंट से ज्यादा खाना खाते हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। आप सही अमाउंट से कम खाना खाते हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। राइट अमाउंट एंड राइट काइंड ऑफ फूड। ठीक है, Right time also. राइट टाइम ऑल्सो, करेक्ट रंजना जी। आप ऑलरेडी मेरे फेवरेट स्टूडेंट बन गए हैं रंजना जी। विद इन द फर्स्ट 5 minutes यू आर माय फेवरेट। ठीक है, तो अब व्हाट इज द राइट अमाउंट? हाउ डू यू नो द राइट अमाउंट? हाँ, एंड राइट वे ऑफ ईटिंग ऑल्सो। खाने को अच्छे से खाना भी जरूरी है। तो पहले राइट अमाउंट के बारे में बात करते हैं। वुड यू वांट टू नो द राइट अमाउंट? हाँ, Yeah. हाँ, ऐसा है ना, ऐसा है, तो आपको थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। अभी आजकल पता है ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे कुछ नोन, मेरे भांजे भतीजे कुछ ऐसे हैं, बहुत शरारती हो गए। वो क्या करते हैं, अपनी फोटो लगा देते हैं ऐसे सामने। टीचर को लगता है कैमरा ऑन है, बट एक्चुअली में फोटो रहती है। तो बार बार मुझे चेक करना पड़ता है, अगर आप हिल रहे हैं तो इट्स अ रियल वीडियो ऑन। ये तो व्हाट्सएप की कहानी बता रहे हैं आप। Yes, yes, yes. So, would you want to know what is the right amount of food? Okay, good. तो right amount क्या है? ऐसा करिए, ये है right amount। हमारे शास्त्रों में लिखा है, in ancient scriptures, it is said that at one point of time you are supposed to eat this much. अंजलि भर, इसको अंजलि बोलते हैं in Sanskrit, hands। अंजलि भर खाना खाना चाहिए आपको एक टाइम पे। Now whenever I say this in Punjab, the next question is upper limit कितना है, ऊपर कितना पहाड़ बनाना है? तो ऊपर इतना। So this is the right amount of food that you are supposed to eat at one point of time, because आपके स्टमक का साइज इतना है, आपका जो पेट है, स्टमक जिसके अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, वो इतना है। तो एक टाइम पे आपको इतना ही खाना खाना है। Now see, whenever you are eating, again is a scripture which talks about lifestyle and food and diet. उसमें लिखा गया है that your food should be divided, इसके 4 हिस्से आपको करने हैं। 2 हिस्से, 2 parts should be the physical food, the heavy food, whatever food. 1 part should be liquid, water, buttermilk, whatever your dietitian suggests you. So 1 part is liquid. The 4th part should be an offering to Shiva. ऐसा बोलते हैं कि भगवान को आप, चौथा जो आपकी थोड़ी सी भूख रह जाती है, वो खाना आप भगवान को अर्पण कर देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बट उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। Now see, अगर आपका पेट इतना है और आप पूरा भर देते हैं, आपका पेट का, स्टमक का काम क्या है? It is to churn and mix and digest the food. Now let's say I have a bottle with me, मेरे पास एक
पानी की बॉटल है, तो मैं दूर करके आपको दिखाता हूँ. दिस इज द बॉटल विद मी. अब ये बॉटल को अगर मैं पूरा ऊपर तक भर दूंगा अप टिल द ब्रिम एंड आई शेक इट, आपको लगता है इसमें कुछ मिक्स हो पाएगा? ऑल द हाउसवाइफ्स जो मिक्सी में कभी कुछ ग्राइंड करती हैं, खाना बनाती हैं, यू हैव टू लीव स्पेस फॉर द फूड टू मूव ऑल्सो, तभी तो मिक्स होके वो ग्राइंड होगा ना. और यही बॉटल अगर थोड़ी सी खाली है, व्हेन आई डू दिस, तो मिक्सिंग पॉसिबल है, ग्राइंडिंग पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस पॉसिबल है. एम आई मेकिंग सेंस? या तो पहली बात तो इतना अगर आप खाना खाते हैं, इट डज नॉट डिप्लीट्स योर एनर्जी, आपकी एनर्जी बरकरार रहती है. ये तो पहली चीज हो गई. ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खाना खाते कैसे, दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. तो वो करने के लिए, वो समझने के लिए, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वे ऑफ ईटिंग फूड. चबा चबा कर तो है ही है, पर आप अच्छे से सीखना चाहेंगे कैसे खाना खाना चाहिए आपको. सडनली मुझे लग रहा है मैं एक एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को सिखा रहा हूं. दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? बहुत सिंपल है बट डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, है ना? तो आप पहले तो जानना चाहेंगे, वुड यू वांट टू नो? बिल्कुल, है ना? ओके. इसके लिए मुझे आपसे थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहिए होगा. आई वांट यू टू पार्टिसिपेट विद मी इन अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर. तो पहले मुझे बताइए आपकी फेवरेट डिशेस क्या हैं, पहले तो मैं वो जानना चाहूंगा. आई नीड टू नो अ फ्यू नेम्स. क्या पसंद है आपको? क्या सुनते ही, नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता, बोला अब भी खा लूं बस? एक दो नाम बताइए. खिचड़ी. अरे यार, सुपर फूड, इजी टू डाइजेस्ट. सडनली आप मेरे फेवरेट नहीं रहे हैं. दाल चावल अचार. ओके, दाल चावल अचार. ओके, ठीक है, यू कैन हैव योर प्रेफरेंसेस. और कुछ थोड़ा अच्छा बताइए, नॉट सो हेल्दी. ओके, ठीक है, आपके डाइटिशियन यहाँ पे है, आपके डॉक्टर यहाँ पे है, तो आप नहीं, आज नहीं मैं सुन रही. आज जिसका जो मन है वो खा सकता है, बोल सकता है. क्या बोल सकते हैं, घबराइए नहीं. व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स? टेल मी. आलू टमाटर की सब्जी. ओके, आलू टमाटर की सब्जी और मनीषा जी. व्हाट एल्स? डोसा. डोसा, बटर मसाला डोसा या नहीं, ओनली मसाला डोसा. मसाला डोसा, ठीक है. और कुछ? इडली. ऑल राइट. संजय जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? Yeah, I would prefer all the sweets. Like आजकल मैंगो आ रहे हैं, तो मैंगो आइसक्रीम रिलेटेड एवरीथिंग. आइसक्रीम. I prefer sweets. ओके, आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो सब लोगों को पसंद रहती है. मोस्ट ऑफ द पीपल, सबको पसंद है यहाँ पे आइसक्रीम. एवरीबॉडी लाइक्स आइसक्रीम. या ओके, ठीक है, तो आइसक्रीम पे फाइनल करते हैं. तो सबको आइसक्रीम खिलाते हैं. I was looking for one dish that everybody would like, so ठीक है. तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी लोग कैमरा ऑफ करके भी बैठे हैं, आप भी अगर मेरे साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. जितने लोग कैमरा ऑन है उनको तो मैं देख रहा हूँ, तो आपको सीधे बैठना है, सिट स्ट्रेट. और जस्ट 2 मिनट के लिए आपको आंख बंद करनी है. टू सिट स्ट्रेट, hands in your laps or on your knees, chest open, eyes closed, आंखें बंद करिए. All right, keep your eyes closed. आंखें बंद रखते हुए, keeping your eyes closed, imagine आपके सामने आपकी फेवरेट आइसक्रीम का एक बाउल पड़ा है. जो भी आइसक्रीम आपको पसंद है, it can be mango, it can be strawberry, whatever ice-cream you like, वो आपके सामने है. और उसके ऊपर आपकी फेवरेट टॉपिंग है. स्ट्रॉबेरीज काट के डाली हुई है, नट्स है, चॉकलेट है, मैंगो है, व्हाटएवर इज योर फेवरेट टॉपिंग. और जो भी सॉस आपको पसंद है, योर फेवरेट आइसक्रीम इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इमेजिन दिस, कीपिंग योर आइज क्लोज्ड, आंखें बंद रखते हुए ऐसा इमेजिन कर. और आंखें बंद रखते हुए उस आइसक्रीम की तरफ देखते जाएं. उसके कलर को देखिए, उसके टेक्सचर को देखिए, वो सब चीजें, वो सब जो टॉपिंग्स हैं उनको ध्यान से देखिए. नाउ विद द राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ से आंखें बंद रखते हुए आप एक स्पून से धीरे से वो आइसक्रीम आपके मुंह के पास लेके आ रहे हैं, तो लेके आइए. यू आर जस्ट रेडी टू ईट दैट आइसक्रीम, तो आपके मुंह के पास लेके आइए विद दैट स्पून. उसमें से हल्का हल्का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की खुशबू या मैंगो फ्लेवर की खुशबू भी आ रही है, उसको भी महसूस करिए.
और उसमें से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, जैसे आइसक्रीम आपके मुंह के पास आ रही है, द टेम्परेचर ऑल्सो इज गोइंग डाउन, यू कैन फील द कोल्डनेस अराउंड योर लिप्स, अराउंड योर नोज, ठंडी ठंडी हवा आपको महसूस हो रही है। अब वो आइसक्रीम खाने के लिए मुंह खोलिए, धीरे से मुंह खोलिए, यू आर अबाउट टू ईट दैट आइसक्रीम, आपकी फेवरेट आइसक्रीम, एंड डन, आंखें खोलिए, ओवर। ठीक है। तो मुझे बताइए, ऑनेस्टली टेल मी, जितने लोगों ने सच में ये किया, who actually did this with me, even though it was a funny stupid thing, अगर आपने सच में ये किया, आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? Raise your hands, let me know. हाँ, संजय जी, ओके संजय जी। मनीषा जी, आपको शायद आइसक्रीम पसंद नहीं है, ओके। सो सर जो आप ये इमेजिनेशन करवा रहे थे, ठीक है, आइसक्रीम का जो भी आप बोल रहे थे कि ऐसे हम इमेजिनेशन करिए और आपको आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया, ठीक है, आप इसका असल में आप बताना इसमें क्या चाहते हैं कि उसमें इमेजिनेशन करवा के क्या करवाना चाहते हैं आप? वो मैं करवाने वाला हूँ ना गुरप्रीत जी, आप मुझे बताने देंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं वो बताने ही वाला था। सो डिड यू ऑल फील दिस थिंग? कुछ लिक्विड आपके मुंह में आया? हाँ ना? क्यों आया? व्हाई? आप तो आइसक्रीम खा भी नहीं रहे थे, आपके सामने आइसक्रीम थी भी नहीं, फिर भी पानी आया। क्या है वो? फर्स्ट आई नीड टू नो व्हाट इज दैट लिक्विड, वो है क्या? वो आपके माइंड का थॉट है, जो तो आपके माइंड में कोई थॉट आप लेते हो तो उसका जो होता है वो। हाँ जी, पर गुरप्रीत जी पानी क्यों आंदा है कि वो पानी को काम किया है, क्यों है? It is Mrig Trishna. मिराज। ओके, सो बट इन अगर आप फिजियोलॉजिकली देखें, मेडिकल टर्म्स में देखें, इट इज सलाइवा which is secreted so that your food can be digested. आपका खाना डाइजेस्ट हो सके, उसमें से एनर्जी आप निकाल सकें, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए वो सलाइवा, वो लार, वो आपके मुंह में सेक्रीट होता है। उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज which digests 30% of glucose in your mouth only. 30% of the digestion of glucose happens in your mouth only. तो अगर ये एंजाइम वहां पे है ही नहीं है, यू आर नॉट डाइजेस्टिंग द फूड प्रॉपर्ली। इफ यू आर नॉट डाइजेस्टिंग द फूड प्रॉपर्ली, यू आर मेकिंग टॉक्सिन्स आउट ऑफ इट, यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी आप, अब देखिए, हम जब भी खाने को देखते हैं या सूंघते हैं, योर बॉडी गेट्स इट सिग्नल, अरे खाना खाने का टाइम है। Suddenly you feel hungry. आपके घर पे, let's say, राजमा चावल is one of my favorites. Whenever my mother cooks राजमा चावल, वो कभी किचन में अगर बनाती है तो मुझे खुशबू आती है, मैं किसी और रूम में बैठा हूँ, and suddenly just by smell of राजमा चावल मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। I'm ready for the lunch. I'm sure आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो your body gets ready. कैसे रेडी होती है खाना खाने के लिए? जब आप खाने को सूंघते हैं या उसको देखते हैं, तब आपकी बॉडी को पता लग जाता है अब खाना आने वाला है। तो बॉडी क्या है, वो एंजाइम्स सिक्रीट करने शुरू कर देती है, सो दैट योर बॉडी इज रेडी टू डाइजेस्ट द फूड। नाउ हम क्या करते हैं, हम जब खाना खाते हैं हमारा ध्यान खाने पे होता ही नहीं है। यू आर बिजी वॉचिंग योर फेवरेट सीरियल और द मूवी, और फटाफट खाने के लिए आप बस यहाँ फिर काम में लगे हैं, फोन पे लगे हैं, या फोन पे किसी से बात कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। उस समय अगर आप खाना खा रहे हैं, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। आपको उसमें से एनर्जी मिल ही नहीं सकती है। यू विल हैव ऑल द डाइजेस्टिव इश्यूज। एम आई मेकिंग सेंस? सो राइट वे ऑफ ईटिंग फूड इज क्लोज्ड एनवायरनमेंट। की गुरप्रीत जी? मैं क्या बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। गुरप्रीत जी ने मेरा स्टेटस लाइक कर दिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, सो राइट वे ऑफ ईटिंग फूड क्या है? आपका खाना आपके सामने पड़ा हो। अगर आप देखिए, हमारी ट्रेडिशन जो है, इंडियन ट्रेडिशन इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज सो साइंटिफिक। आज से कुछ साल पहले आपके मदर्स, दादी माँ, नानी माँ आपको सिखाते थे खाने से पहले बैठ के प्रेयर करो, या एंड दैट्स अ वंडरफुल ट्रेडिशन। क्योंकि जब आप प्रे करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं खाने से पहले, क्या होता है, आपका मन ऑटोमेटिकली सेंटर्ड हो जाता है। आप आसपास से अपना ध्यान हटा के खाने पर लेके आते हैं। यू लुक एट फूड, यू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड,
और फिर जब आप खाना खाते हैं, यू आर देयर विद द फूड, you are completely with the food, you are doing that 100%. So that is the right way of eating food. आराम से बैठ के खाइए, चबा चबा के खाइए और खाने को एंजॉय करके खाइए. अगर आप ऐसे खाना खाएंगे, if you actually try doing it today, आज लंच अगर आप ऐसे करेंगे, you will see, अगर आप 2 रोटी में आप एकदम फुल होते हैं, आप 1.5 रोटी में फुल हो जाएंगे या 1 रोटी में फुल हो जाएंगे. You will feel that satiation in a lesser amount of food, that satisfaction, कम खाने में आप satisfied हो जाएंगे. ठीक है, will you all try this today? करेंगे आज? Yes? मगर आजकल की जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, खासकर वर्किंग, उनके पास में इतना टाइम तो है ही नहीं कि एंजॉय करें. We are just filling our stomach. एंजॉय नहीं करना है तो सफर करिए. See, रंजना जी, I'll tell you, इतना बिजी होना भी अच्छा नहीं है कि आपके पास खाना खाने का टाइम नहीं. माइंड तो हमेशा स्ट्रेस में ही रहता है. हाँ. इट कीप्स ऑन थिंकिंग. आपका नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, क्या अरेंजमेंट करना है. डिनर के टाइम में आप मॉर्निंग का सोचना शुरू कर देते हो कि नेक्स्ट डे की प्लान आउट क्या होगा. हाँ ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट आल्सो. मैं सब तैयार करके आऊँ, इसके बाद नेक्स्ट उसी पे जाने वाला हूँ. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हाउ टू ईट फूड. आई विल बी कमिंग टू द माइंड एज वेल, रंजना जी. दैट इज द वो मेन है. ठीक है, तो खाना समझ में आया, उसको रिस्पेक्ट के साथ खाइए. वो खाना आप इतने छोटे से थे जब पैदा हुए थे, पता आपको, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो के थे. But when we are, but then we are tension free. हाँ. We have no responsibility. Yes. नहीं, मैं बोल क्या रहा हूँ कि आप जब थे 2, 3, 2.5 किलो के थे, छोटे से थे, अभी इतने बढ़ गए हम 70, 80, 90, जितना भी हमारा वेट हो गया है. कहाँ से आ रहा है वो वेट? इट इज ऑल जो आप खाना खा रहे हैं, वो आपके शरीर में रह के आपके शरीर का पार्ट बन रहा है. सो वो जब आप खाना खाएं तो उस ऑनर के साथ, उस रिस्पेक्ट के साथ खाएं कि ये मेरी बॉडी बनने वाला है. दिस विल स्टे इन माय बॉडी, दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय बॉडी. सो विद दैट रेवरेंस वो खाने को खाएं. जब आपके मन में ऐसा भाव होता है, अगर खाना इतना हेल्दी नहीं भी हो, थोड़ा तो हेल्दी हो जाता है और आप सही अमाउंट खाते हैं. सो दिस ट्रिक यू कैन यूज टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ फूड. ठीक है, इज दैट ओके? नेक्स्ट, तो ये था फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकंड क्या है बताइए, और गेस करिए. फर्स्ट डन, नेक्स्ट व्हाट? कोई गेस नहीं करना चाहता है? वाटर. क्या बोल रहे हैं नवजोत जी? वाटर जी. वाटर, नवजोत जी, खाने में आ जाता है उसी में. वैसे ही तो वाटर का कैलोरीफिक वैल्यू इज 0, उसमें कैलोरी 0 होती है. Appreciation. एनवायरनमेंट का भी कोई फैक्टर पड़ेगा? हाँ जी, एनवायरनमेंट पे मैं आ रहा हूँ, लास्ट में वी विल कम टू एनवायरनमेंट. आप करेक्ट बोल रहे हैं. Workout. हाँ जी, वर्कआउट. नीलम जी सेइंग वर्कआउट. ओके, वर्कआउट आपको एनर्जी देता नहीं है. वर्कआउट क्या करता है? इट इंक्रीजेस योर एबिलिटी टू होल्ड द एनर्जी. वर्कआउट से क्या होता है? ज्यादा एनर्जी होल्ड कर पाते. लेट मी जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड एक्सप्लेन यू दिस. ये अच्छा आपने वो बोला. तो जैसे एक मेरे पास फोन है, आई हैव दिस फोन. क्या नवजोत जी? ओके, मे बी आप, हाँ, तो इसका फोन का आप एक कुछ होता है ना, बैकअप कितनी देर तक रह सकता है, कितनी देर तक डाई नहीं करेगा, कितनी देर तक काम करता है. तो वो इसका बैटरी का पावर होता है, कितने mAh की बैटरी है. सो लेट्स से बैटरी इज 5000 mAh, तो एक पूरा दिन बगैर चार्ज के निकाल लेता है. मैं बैटरी बड़ी करता हूँ, 10 mAh की डाल देता हूँ, तो 2-3 दिन बगैर चार्ज के निकल जाएगा. सो वर्कआउट क्या करता है? इट इंक्रीजेस योर एबिलिटी टू होल्ड द एनर्जी. ठीक है, आप वर्कआउट करते हैं, आपके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो पाती है, फिर आप बगैर खाने और बगैर बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी के ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं. बट इट डज नॉट राइट अवे गिव्स यू एनर्जी. ठीक है, सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी मैं ही आपको बता देता हूँ, सिंस आप बहुत टाइम लगा रहे हैं और हमको समय पे खत्म भी करना है. मैं ही बता दूं फिर. Appreciation, faith. Appreciation, faith also is correct, but again, not the answer that I'm looking for right now. Right now, I'm looking for the balance. Right now, you're talking about the balanced diet, right amount of food, right amount of vitamins, right amount of minerals. This is what you are talking about? Yeah, that I just finished talking about. सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको ऊर्जा देता है, वो क्या है? अगर आप कभी रात को नहीं सोते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है? आर यू वेरी एनर्जेटिक? No. नो.
सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज स्लीप. अगर आप सोते ढंग से नहीं है, आपको एनर्जी नहीं रहती, आप लो रहते हैं, देन अगेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड योर टेंडेंसी टू गिव इन फॉर योर क्रेविंग्स इज मोर. अब आप आपकी डाइट, आपका वर्कआउट रूटीन, जो कुछ भी है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे. ठीक है. तो सेकंड, आपका रात में बैटरी चार्ज होती है जब आप सोते हैं. स्लीप गिव्स यू एनर्जी, सो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप. बहुत सारे आपको फिटनेस गुरुज या योगा गुरुज आपको ऐसा बोलेंगे कि आपकी स्लीप को कट करिए, ज्यादा एक्सरसाइज करिए, सुबह जल्दी उठिए, वो सब करिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गेट अप अर्ली बट नॉट एट द सेक ऑफ लूजिंग योर स्लीप. सही टाइम पे सो के जल्दी उठिए. 2 बजे सो के जल्दी नहीं उठिए. दैट इज वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर यू. ओके, नीलिमा जी, वांट टू आस्क समथिंग? I would like to ask you, what is the time limit of the sleep? Okay. Time limit, Sanjay ji, varies from person to person. When you are young, you need 10 to 11 hours of sleep. When you are growing up, the amount of sleep required is more. When you are grown up, you are old, the sleep automatically is reduced. And if you are meditating, agar aap meditate karte hain, then you acquire a lot of energy through meditation, and then the requirement of the sleep is less. It depends from person to person and the kind of job that you do and your age and your lifestyle. So ये आपको खुद डिसाइड करना होता है आपको कितनी नींद चाहिए. On an average 6 to 8 hours of sleep good enough. Okay, 6 to 8 hours of sleep is good enough. But क्या होता है जब आपको भी आपकी बॉडी, आप देखिए कभी सोते हैं सुबह एक बार आपकी आंख खुलती है एक एग्जैक्ट टाइम पर, और फिर आप बोलते हैं चलो थोड़ा सा और सो जाता हूँ. वो जो थोड़ा और सो जाता हूँ, नाउ स्लीप इज इक्वल टू एनर्जी. अभी आप बोलेंगे अच्छा नींद से एनर्जी मिलती है, तो अगर मैं 7 घंटे सोता हूँ, आज मैं 10-11, आज संडे है, 10-11 घंटे सो जाऊंगा तो मुझे और एनर्जी आएगी. ऐसा होता है क्या? नहीं. जिस वाले दिन आप ज्यादा सोते हैं 10-11-12 घंटे, कैसा निकलता है आपका सारा दिन? आलस वाला. यू आर ड्राउजी, यू आर लो, यू आर सो, पूरा दिन ऐसे रिंग के निकाल देते हैं. So sleep also, right amount of sleep. अगर आप ज्यादा सोते हैं it takes away your energy. अगर आप कम सोते हैं it takes away your energy. Right amount of sleep. What is the right amount of sleep? Your body tells you. एक बार तो उठते हैं और फिर उसके बाद आप बोलते हैं चलो थोड़ा और सो जाते हैं, और वो सोने में आप सोते नहीं बट आपको सपने आते रहते हैं. There is this daydreaming going on in the mind. और वो 1-2 घंटा चलता है और वो आपको ड्रेन करता है. So what is the right time to get up? Whenever automatically your eyes open in the morning. एक बार तो अपने आप से खुलता है अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे. और अगर आप मेडिटेट करते हैं रेगुलरली, if you practice yoga and pranayamas, you get more connected to the sleep, more connected to the body. You get a better sleep and better rejuvenation throughout the sleep. ठीक है. तो स्लीप का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए. ये जो 2 सोर्सेज है, they are limited sources of energy. Limited मतलब ज्यादा खाने से ज्यादा एनर्जी नहीं आएगी, ज्यादा सोने से ज्यादा एनर्जी नहीं आएगी, बट सही तरीका करने से लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास आएगी. बट अभी अगर आपको प्रेजेंट लेवल से ज्यादा एनर्जी चाहिए, आप चाहते हैं मेरे जीवन में और ऊर्जा आए, सो दैट आई कैन अचीव मोर, मैं और ज्यादा करना चाहता हूँ, और भी काम करना है, और भी अचीव करना है, बट एनर्जी लिमिटेड है. वांट टू इंक्रीज द एनर्जी, वो कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. आप जानना चाहते हैं उसको? वुड यू वांट टू नो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? अगर आप बोर हो गए हैं तो फिर मैं नहीं बताता हूँ. देन लेट्स रैप अप. Everybody is interested to कंटिन्यू know. करिए. है जी, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना? लगता है नहीं जानना चाहता है तो रहने देते. यस नहीं छोड़ देते हैं. नहीं जानना चाहते हैं. बताओ थोड़ा बढ़िया. क्या मैं पहले आपके साथ ज्वाइनिंग हुआ, बट आप बहुत बढ़िया बता रहे हो जो भी है सर. ठीक है. तो ये अभी क्या हुआ, मेरे को एनर्जी कहाँ से आई? कैन यू गेस मेरे को एनर्जी कहाँ से आ रही है? नाउ यू ओनली मोटिवेशन. माइंड, मन जो है वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका कोई अंत ही नहीं है. अनलिमिटेड एनर्जी. नाउ आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. अब देखिए इन पंजाब हमारा लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी है
कि थोड़ी एक एज के बाद, एक उम्र के बाद आप देखिए जितने भी घर में लेडीज होती हैं, स्पेशली इन माय हाउस आल्सो, माय मासी, माय मदर, तो उनके फिर क्या है, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरी कमर बड़ी दुख रही है, मेरी बड़ी थकावट हो गई है जी, मेरे से चला नहीं जाता, मेरा ये वो शुरू हो जाता है एक ओल्ड एज में। आप सबके घर में नानी दादी जो भी है उनको होता होगा सिमिलर कंडीशन, है ना? सब हमें ही होता है, दादी नानी की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आपको तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस हैपेंस विद माय मदर आल्सो। मेरी माँ के साथ भी ऐसे हो, तो घुटना पकड़ के आए मेरी कमर, आए मेरा गोडा, ऐसे बैठ जाते हैं। और जैसे ही ऐसे बैठे होंगे सडनली मेरी मासी का फोन आएगा, सुनो वहां पे ना सेल लगी है 70%, बिल्कुल फ्रेश स्टॉक। सडनली वो जो दर्द है कमर का, घुटने का, सब गायब हो जाता है, पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है। वो झोला उठा के बाजार में पूरा दिन घूम के रात को एकदम फ्रेश वापस आते हैं, और वापस आने के बाद भी थके नहीं होते। फिर वो सब जो जितने भी सूट खरीद के लाए हैं ऐसे बिखेर के फिर घर, ये देखो जी ये कितना सोना है, ये कितना अच्छा, ये इसके साथ ये मैच हो रहा है, इसका मैं ये बनाऊंगी, इसका मैं वो बनाऊंगी। सो मच ऑफ एनर्जी कहाँ से आई? अब ऐसा नहीं है कि मेरी माँ मेरे साथ नाटक कर रही है कि मेरे को खाना नहीं बनाना इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरा घुटना दुख रहा है। शी इज लो ऑन एनर्जी, बट सडनली जब मन से एकदम एनर्जी आती है, और वो एनर्जी मन खुश है तो सब खुश। Exactly, Manisha ji. So the mind gives you unlimited energy. Similarly, हमारे घर में अगेन दिस नानी दादी whoever is there जो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत पेन में रहते हैं, और सडनली उसी घर में अगर उनके पोते की शादी हो और घर में कोई शादी हो, वही नानी ऐसे डांस कर रही होती है बारात में, पूरा पूरा आधा घंटा 1 घंटा डांस करेगी, दर्द सब गायब। कहाँ से आ रही है वो एनर्जी? कहाँ से आ रही है? दिस फ्रॉम द माइंड। Yeah? When your mind is happy, calm and relaxed, there is unlimited energy. और जब आप मन से खुश रहते हैं तब आपको क्रेविंग के लिए, और आप क्रेविंग्स में फॉल नहीं होते हैं, आपके पास एनर्जी रहती है, और आप डिटर्मिनेशन के साथ आपका जो रूटीन है, जो डाइट है, जो आपका एक्सरसाइज रूटीन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जगमीत जी, कैन यू म्यूट एवरीबडी, बिकॉज बीच बीच में ऐसा you can give them Suraj, please mute everyone. वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बाकी लोग को भी सुनता नहीं है। यू कैन, जब भी आपको बात करनी है आप अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एनर्जी। सो आप देखिए, आप बॉडी को साफ करते हैं, आपके शरीर को, खाने को साफ करते हैं, सब चीज को साफ करते हैं। देयर इज नो, आपके दांतों को भी साफ करते हैं। डेंटल हाइजीन, सुबह उठ के आप सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। कभी आप देखा आपने दिन में ब्रश नहीं किया तो आपका माउथ कैसा हो जाता है, मुंह कैसा हो जाता है? यू फील यकी, एकदम ऐसा ई लगता है। आप कभी बगैर ब्रश किए बाहर गए हैं, घर के बाहर, शादी में, पार्टी में, कैसा लगता है आपको? अरे छी छी छी, ऐसे कैसे? खाना तक नहीं खाते बगैर ब्रश किए। बट आप आपकी डेंटल हाइजीन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, मेंटल हाइजीन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बगैर मन साफ किए कई सालों से घूम रहे हैं, है कि नहीं? आज से 10-15 साल पहले आपको किसी ने अगर कुछ बुरा बोला होगा, गाली दी होगी, गुस्सा किया होगा, आपके साथ बुरा किया होगा, आपको आज भी याद रहेगा। सडनली वो आदमी सामने आ जाता है, सडनली वो सब सीन आपके सामने याद रह जाता है। होता है कि नहीं? माइंड ऑलवेज स्टिक्स टू द नेगेटिव। आपका जो मन है हमेशा नेगेटिव चीज को पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रंजना जी विद मी। सामने रंजना जी हैं, पहली बार मुझे मिले हैं। मैं रंजना जी को बोलता हूँ, 10 कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ रंजना जी को। रंजना जी, आपकी स्किन कितनी बढ़िया है, आपके बाल इतने अच्छे हैं, आपकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल है, यू आर अमेजिंग, यू आर दिस, यू आर दैट। लास्ट में बोल देता हूँ, 10 कॉम्प्लीमेंट दिए, लास्ट में बोलता हूँ, रंजना जी आपका जो नाक है ना वो पकौड़े जैसा है। अब रंजना जी को क्या याद रहने वाला है? एक इंसल्ट। तो 10 कॉम्प्लीमेंट दिए, कुछ याद नहीं रहेंगे। सबसे पहले जाके शीशे में क्या देखेंगे? वो अपना नाक, और फिर देखने बाद अपनी नाक देखी थी उसने, मेरी नाक पकौड़े जैसी है। आज से 10-15 साल बाद गलती से सड़क पे कहीं घूमते घूमते इनको मैं दिख गया तो मेरे को पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे। यही वो आदमी है जिसने बोला था मेरी नाक पकौड़े जैसी है। इनके बच्चे अगर साथ में होंगे तो बोलो, बेटा पत्थर मार इसको उठा के, इसने बोला था तेरी माँ की नाक पकौड़े जैसी है, नाक तोड़ दे इसकी। ओके, सो क्या होता है? माइंड ऑलवेज लिंक्स टू द नेगेटिव। अच्छी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, नेगेटिव याद रहती। पर क्या वो याद रहनी चाहिए? डू यू थिंक इट इज वर्थ रिमेंबरिंग? नो, isn't it? So the quality of your life depends upon the quality of the mind. अब मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 2 तरीके हैं।
अगर आप मन को मन के लेवल पे जाके कंट्रोल करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. देयर आर अदर टू वेज ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड. आप जानना चाहते हैं? I think you are talking about the breathing techniques as well as the meditation right now. I don't. For me, it's very important, but I don't know. For you, even physical activity was not that important because right now this is on the diet, and you don't agree to the physical activity also. Never mind. And now, right now, I am talking about the meditation and breathing techniques, which are really, really important for me, at least. Yeah, for me as well, by the way. They're the most important thing. So, पहले तो बाकी लोगों से, नीलम जी तो थोड़ा सा समझ गए हैं, गेस कर लिया उन्होंने. बाकी लोगों से मैं पहले परमिशन लेना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आप सच में जानना चाहते हैं, बिकॉज मैं तभी बोलता हूँ जब लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं. मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आई कैन टेल यू, अदरवाइज वी कैन से. Yes, definitely. Don't say bye. Please go ahead. संजय जी, ये सिर्फ आपके लिए, अदरवाइज मैं पक्का जाने वाला था, बस आपने बोला है, आपने रोक लिया मुझे. Thank you so much. बाकी सब 40 मिनट से वेट कर रहे हैं. नहीं, पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना. आई वांट यू टू पार्टिसिपेट आल्सो विद मी. ठीक है, बट रंजना जी आप तो कर रहे हैं. आपसे कोई, आप मेरे फेवरेट हैं पहले 5 मिनट से. ओके, थैंक यू. दो चीजें हैं विद विच यू कैन हैंडल द माइंड. आपके मन को कैसे, एंड अगर आप ये सीख जाते हैं ना, इट इज नॉट अबाउट द डाइट, नॉट अबाउट योर बॉडी, इट कैन चेंज द एंटायर लाइफ. आपके जीवन का हर एस्पेक्ट इससे टच्ड रहेगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस. आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपका हाउ यू हैंडल कंप्लेंट्स, हाउ यू हैंडल प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग. ये सिर्फ 2 चीजों से आप हैंडल कर सकते हैं. इफ यू नो हाउ टू हैंडल द माइंड, आप ये सब कर सकते हैं. ठीक है. सो पहली चीज क्या है, वो बताने के लिए, अगेन वो समझाने के लिए, मुझे आपके कैमरास थोड़ा अगर ऑन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा. अगेन आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट प्रोसेस. तो उसके लिए अगर आपके कैमरास ऑन रहेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा. थैंक यू वेरी मच संजय जी. जो लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा ऑन करने में, जो कर सकते हैं, आप प्लीज कर दीजिए. बाकी जिनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कीप योर कैमरास ऑफ. बहुत जबरदस्ती नहीं है, ठीक है. तो अभी आपको क्या करना है, फिर से सीधे बैठना है. द वंस विद योर कैमरा ऑन, सीधे बैठिए, कैमरा सामने रख दीजिए, चिल करिए. अब मैं थोड़ा सा स्टूपिड सा कुछ बोलने वाला हूँ, सुन के आपको लगेगा ये क्या अजीब बात करना, बस मेरे लिए आप कर दीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मी. 30 सेकंड या 50 सेकंड तक आने वाले आपको क्या करना है, आपको स्माइल करना है. फेक स्माइल, विदाउट एनी रीजन. मन नहीं भी कर रहा है, सिर्फ चेहरे से ऊपर से नकली स्माइल करनी है आपको. स्माइल करिए और उसको होल्ड करके रखिए. गंदी स्माइल, नकली स्माइल. स्माइल करिए. चलिए एवरीबॉडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टार्ट स्माइलिंग. होल्ड द स्माइल. होल्ड 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 होल्ड. रंजना जी स्माइल करना है, गुस्सा नहीं करना है. स्माइल ऐसा, दांत बाहर निकालिए. हाँ, उसको होल्ड करके रखिए. नकली, गंदी, बकवास, होल्ड. इसको आपको होल्ड करके रखना है फॉर a few more seconds, just 10-15 सेकंड और, फिर आपको टॉर्चर से बाहर निकाल देंगे. और थोड़ा होल्ड करिए. संदीप जी थोड़ी तो बड़ी स्माइल करिए, आप तो मेरे फेवरेट, आपको तो मैं मिलने आने वाला हूँ पर्सनली. ओके, रिलैक्स, लेट गो. ठीक है, विश्राम करिए. अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने स्माइल किया स्टार्टिंग में, तो आपको हो सकता है ऐसा लगा हो ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या अजीब सी चीज़ करा रहे हैं. बट कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ जब आपने स्माइल किया और उसको होल्ड किया हमने 10-15 सेकंड, आफ्टर 15-20 सेकंड्स आपके अंदर जो फीलिंग थी वो ऐसी आने लगी जैसे आप रियल में स्माइल कर रहे हैं. कुछ लोगों के साथ हुआ ऐसा? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट लाइक दैट? रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो. यस. तो अभी क्या हुआ, सी, जैसे आपकी बॉडी, जैसे आपका मन आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही आपकी बॉडी आपके मन के साथ भी कनेक्टेड है. जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे फ्राउन करते हैं, शरीर लटका लेते हैं, ऐसे नीचे बैठ जाते हैं. तो आपकी बॉडी से दिखता है कि आप दुखी हैं. माइंड इज कनेक्टेड टू द बॉडी. यस, एकदम आप ऐसे बैठ जाते हैं, लो हो जाते हैं. आपकी शक्ल देख के पता लग जाता है कि आप दुखी हैं. चाहे आप एक्टिंग भी करें, हमारी जो मदर्स है, हमारी माँ जो है, उनको एक झलक में पता चल जाता है आज ये डिप्रेस्ड है. यस. तो जैसे मन के साथ बॉडी कनेक्टेड है, अगर हम उसका इन्वर्स कर दें, आप बॉडी को सही रखें, चेहरे में स्माइल रखें, चेस्ट ओपन रखें, राइट पोस्चर रखें, ऑटोमेटिकली द माइंड ऑल्सो फील्स
एक्टिव, एनर्जेटिक। जैसा आपका पोस्चर होगा वैसा आपका मन होगा। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द साइंस ऑफ योगा। योगा में आप अलग अलग पोस्चर्स करते हैं, वो अलग अलग पोस्चर्स आपके मन के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, एंड दैट इज हाउ यू करेक्ट और गवर्न द माइंड थ्रू बॉडी पोस्चर्स। तो ये पहला एस्पेक्ट है। And Nilima ji would agree with me because she is so much into physical exercises. That is how exercises help you और yoga help you. और उससे क्या होता है, आपका posture अच्छा रहता है, आपकी breathing अच्छी रहती है, आप दिन में एकदम ऐसे एनर्जेटिकली खड़े रहते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। आप जितना स्माइल करते हैं उतना आप खुश फील करते हैं। ठीक है, चाहे वो नकली ही स्माइल आपने किया, अभी फेक स्माइल था, रियल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, यू फेल्ट गुड। So that's how through the body postures you can control the mind. ये पहली चीज हो गई। दूसरा है breath. Through breath we can control the mind. आप देखिए, जब भी कभी आप बहुत गुस्सा होते हैं, whenever you are very angry, आपकी सांस ऑटोमेटिकली बदल जाती है। देखा है कभी आपने, नोटिस किया आपकी सांस कैसी होती है जब भी आप गुस्सा होते हैं? इट इज वेरी फास्ट। आप ऐसे गुस्सा होते हैं। कभी आप ऐसे गुस्सा हैं? आज मैं बहुत गुस्सा हूं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नेवर। ऑटोमेटिकली ब्रेथ चेंजेस। सो विद एवरी इमोशन देयर इज अ रिदम ऑफ ब्रेथ अटैच्ड टू इट। तो अगर आप आपकी सांस को कंट्रोल कर पाते हैं तो यू कैन कंट्रोल द माइंड एज वेल। मेकिंग सेंस? तो प्रैक्टिकली थोड़ा कुछ करके देखना चाहेंगे आप? Do you want to learn a few breathing techniques, a little bit of breathing, Hana? हाँ, क्या कह रहे हैं संजय जी? हाँ जी, डेफिनेटली विल लाइक टू लर्न ब्रीदिंग टेक्निक। ओके, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं तो करते हैं। सबसे पहली चीज, द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड फुल यौगिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो दायां हाथ है वो पेट पे रखिए, सीधे बैठिए। लेफ्ट हैंड ऑन द नी, आर्म फेसिंग द सीलिंग, ऐसे हाथ नी पे रखिए, सीधे बैठिए। अभी आपको बस सांस लेना है और छोड़ना है, और सांस लेते हुए बस ऑब्जर्व करना है कि जब आप सांस ले रहे हैं आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। 3-4 लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए, एंड लेट मी नो कि आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। क्या हो रहा है आपके पेट के साथ, या कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं का वहीं है? सांस लेते वक्त तो अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है। ओके, तो संजय जी के साथ क्या हो रहा है? जब वो सांस ले रहे हैं उनका पेट अंदर जा रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं पेट बाहर आ रहा है। बाकी लोग के साथ सेम। ओके, व्हाट एल्स? सेम हो रहा है। सांस ले रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है जी। ओके, संजय जी वांट्स टू से समथिंग। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा तो लाइक व्हेन आई इनहेल इट गोज इन, व्हेन आई एक्सहेल इट गोज कम्स आउट। ओके, और कोई, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, ऑलराइट। तो कैन वी प्लीज, संजय जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, सो नाउ सांस लेने के लिए द प्राइमरी मसल फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड डायफ्राम। आपके पेट के अंदर एक मसल होता है, जब आप सांस लेते हैं तो वो मसल एक्सपैंड करता है, और ड्यू टू दैट एक्सपेंशन आपका पेट बाहर आना चाहिए। दैट इज हाउ यू वर सपोज्ड टू बी ब्रीदिंग। ऐसे आपको सांस लेना था। अगर आप एक छोटे बच्चे को कभी देखेंगे, एक छोटे बच्चे जब सो रहे होते हैं, अगर आप उनको देखिए, उनका पेट जो है ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। Whenever you breathe, the tummy is supposed to come out. Whenever you breathe out, the tummy is supposed to go in. सांस लेने पे बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ने पे अंदर जाना चाहिए। तो आप देखिए कितने, आप मोस्टली 90% ऑफ यू आप सांस ही गलत ले रहे हैं। एंड आपने अभी सीखा आपकी सांस जो है मन के साथ रिलेटेड है। अगर आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे, मन में कंफ्यूजन रहेगा, इरिटेशन रहेगा, फोकस नहीं हो पाएगा, हाई एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, सो कंट्रोलिंग द माइंड कैन हैपन थ्रू कंट्रोलिंग द ब्रेथ। लेट्स ट्राई इट द अदर वे। फिर से एक बार अभी ठीक करके देखते हैं। सीधे बैठिए, सिट स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए,
पेट पर हाथ रखिए। नाउ दिस टाइम आपको इंटेंशनली जब आप सांस लेंगे तो पेट को फुलाइए, बाहर लेके आइए, छाती को फुलाइए, पेट को फुलाइए। एक्सपैंड द टमी, एक्सपैंड द चेस्ट, होल्ड। नाउ ब्रीथ आउट, कॉन्ट्रैक्ट द टमी, कॉन्ट्रैक्ट द चेस्ट। Once again, breathe in, breathe out. नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हो सके तो आंखें बंद कर लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को विश्राम दें। बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज। कंटिन्यू ब्रीदिंग लाइक दिस। ऐसे ही सांस लेते रहें, छोटे रहें, आंखें बंद रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन इरेक्ट, आइज क्लोज्ड, आंखें बंद। लंबा गहरा सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सेम वे। ब्रीदिंग इन, एक्सपैंड द टमी, एक्सपैंड द चेस्ट, होल्ड द ब्रेथ, slowly breathe out, contract the tummy, contract the chest. Continue breathing like this for 5 more times. 5 बार और ऐसे लंबा गहरा धीमा सांस लें, छोड़ें। आंखें बंद रखें, सांस पर ध्यान रखें। लंबा गहरा सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, पेट को फुलाएं, छाती को फुलाएं। Keep your eyes closed. आंखें बंद रखें। And keeping your eyes closed, आंखें बंद रखते हुए विश्राम करें। साधारण सांस ले छोड़ें, आंखें बंद रखें। Keep your eyes closed. आंखें 100% बंद। साधारण सांस लें, धीरे से खाली करें। आपका सारा ध्यान आपकी सांस पर ले जाए। टेक योर अटेंशन टू द ब्रेथ। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, उसे देखते जाए। कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद रखें। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ। हर अंदर आती हुई सांस शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर जाती हुई सांस शरीर को विश्राम दे रही है। Every incoming breath is energizing the body. Every outgoing breath is relaxing the body. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए relax more and more with every outgoing breath. हर बाहर जाती हुई सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं। Keep a gentle smile on the face. And just for 30-40 seconds, आने वाले कुछ क्षणों के लिए शरीर को एकदम स्थिर कर लेते हैं। शरीर एकदम स्थिर कर लीजिए, like a statue, जैसे एक पत्थर की मूर्ति हो। धीरे धीरे शरीर स्थिर होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होता जा रहा है। Just become aware of this phenomena and relax, keeping your eyes closed. इसी कंडीशन में विश्राम करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शन्नो अस्तु द्विपदे। शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और साधारण सांस लें। टेक नॉर्मल ब्रेथ इन
With a smile, breathe out. Become aware of your surroundings, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे जब भी आपका मन चाहे आंखें खोल सकते हैं. स्लोली ओपन योर आईज. धीरे से आंखें खोल लें. So good morning once again. फिर से एक बार very good morning. आपका अभी do you see a little slight change in the mind? How's the mind right now? Anybody would want to share? Definitely it is a change. Sometimes जो आदत बनी हुई है ना तो Let's talk, Sanjay ji, let's talk about right now. अभी आपका मन कैसा? Right now. it was very nice. Very nice. How are you feeling right now? Is it calm? Very nice. Yeah, right now. Ranjana ji, is it good? थोड़ा टायर्ड हो गया. थोड़ा टायर्ड हो गया. Okay. हाँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट लगी एक्सरसाइज ये. हाँ, तो you have to practice them regularly. तो you know because आप बहुत सालों से आपको नहीं पता आप कितनी देर से आप उल्टा ब्रीथ कर रहे हैं. So changing the pattern takes time. Changing a habit takes time. But करने के बाद आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा कि नहीं बिल्कुल भी एकदम कैसा लगा आपको? When you're meditating, when you're keeping your eyes closed, when you're breathing, थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ मन में कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं हुआ तो बोलिए बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई. It's okay. हुआ नहीं हुआ? अरे तो बोल ही नहीं रहे हैं. ठीक है. Felt relaxed. Okay. ठीक है. Good. So ये जो भी हमने किया, it was just like 0.1% of what you can do, what you can experience. This is not the whole thing, but just a glimpse of what you can do with the mind. आपने दो मिनट भी नहीं आंखें बंद करके breathing को थोड़ा change किया, and you felt a little change in the mind. Yes, but when you do it regularly for a longer period of time on a continuous basis, you definitely get this ability to control the mind. ठीक है, तब आपके एनर्जी लेवल्स आप रह सकते हैं. आप कभी जीवन में लो भी जाते हैं तो इमीडिएटली स्नैप करके वापस आ सकते हैं. जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्लैशेस होंगे, बहुत सारा दुख दर्द आता है, बट व्हेन यू नो दीज टेक्निक्स, व्हेन यू नो हाउ टू हैंडल द माइंड, यू कैन ओवरकम. ठीक है, तो लास्ट में जाने से पहले आई विल टेक 5-10 more minutes. इज दैट ओके? कैन आई टेक 5-10 more minutes? आई वुड वांट टू शेयर 2 things विद यू. 2 चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. पहली, Why do you, आप यहाँ पे सब डाइट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेट रीजन क्या है? Why do you want to lose weight? रीजन क्या है उसके पीछे? क्यों करना चाहते हैं सर? Why? To keep myself healthy. Keep myself healthy. Okay. और बताइए. और कुछ रीजन है? It's just to control my blood sugar levels, not for the weight. My weight is okay. It's okay. Whatever. जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है. So it is controlling the blood sugar levels or reduce weight or keeping yourself healthy or look good or to feel good. There are many reasons. मनीषा जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बट वो क्यों कर रहे हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल भी क्यों चाहिए आपको? अल्टीमेटली जिससे कुछ साल अच्छे से जी सके. Yes. Ultimately क्या है? Ultimately क्या है? There is something inside you that tells you that जैसा मैं अभी हूँ, वो सही नहीं है. There is this thing which tells you you are not correct, you are not right, you are not okay, you are not good. वो नेगेटिव या ये थोड़ा डेप्थ में हो सकता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो सकता है. अगर शायद आपके सर से चले जाए, इट्स ओके. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग वेरी सटल. सो एक एक्शन जो एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट से उत्पन्न होता है, दैट इज डूइंग अ डाइट और एक्सरसाइजिंग, फॉलोइंग अ हेल्दी रूटीन, बट इट इज कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव थॉट. वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता है बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग विच इज नेगेटिव. अगर आपको डाइट करना है, healthy lifestyle follow करना है, it should come from a space of self love. I love myself so much, that's why I want to keep myself healthy. I love my body so much, I love it the way it is right now.
अगर आप अभी जैसे हैं उसको प्यार करना सीखेंगे तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे। आप देखिए, आपको भी अगर कोई चेंज करे गुस्से से, जबरदस्ती से, आप कभी नहीं बदलते, है कि नहीं? मैं गुस्से से आकर बोलूं रंजना जी आज के बाद आपको मीठा नहीं खाना है, रंजना तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला? बट मैं प्यार से बोलता हूँ रंजना जी प्लीज मेरे लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच, आप प्लीज थोड़े दिन के लिए मीठा बंद कर दीजिए, चांसेस फॉर हर टू डू दैट विल बी मोर। यस यस, जैसे आप किसी और का गुस्सा नहीं सहते हैं वैसे ही अपना भी नहीं सहते हैं, अपने आप को भी प्यार से ट्रीट करना है। सो ऑल दिस चेंज दैट यू वांट, उसका जो एक्शन जो आप चाहते हैं उसका रूट कॉज शुड बी सेल्फ लव एंड नॉट सेल्फ क्रिटिसिज्म। अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करिए, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत अनहेल्दी हूँ, मैं बहुत बकवास हूँ, मेरा खाना कंट्रोल में नहीं है, मेरी बुद्धि सही नहीं है, वॉट एवर। It should never come from that space, okay? आप बहुत बढ़िया है, you all are wonderful, lovely, ठीक है? And it should come from that space. Am I making sense? Yep. Yeah? Last I'll give one story and we will end it. एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसको अगली 5 मिनट तक खत्म करते हैं। एक बार क्या होता है, एक स्कूल में एक नई टीचर आते हैं। There is this teacher और स्कूल के बच्चे बहुत शरारती, हमारे जैसे, आपके जैसे। तो सब बोलते हैं ये जो टीचर है ना बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है, और बाकी सब स्टूडेंट बोलते हैं कि इनको ना हम बेवकूफ प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट दिस टीचर इज स्टूपिड, इडियट। तो वो एक स्कीम बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मैं ना अपने हाथ में एक बटरफ्लाई लेके जाऊंगा, तितली लेके जाऊंगा टीचर के पास और उसको पूछूंगा टीचर ये बटरफ्लाई जिंदा है कि मरी हुई है। तो अगर तो टीचर बोलेगा जिंदा है तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा पिचका के ऐसा खोल देंगे तो मरी हुई है। तो अगर वो बोलेगा मरी हुई है, वो हाथ ऐसे खोल देंगे, उठ जाएगी। बहुत अच्छा टीचर, दोनों कंडीशन में टीचर गलत साबित हो गया और उसकी इंसल्ट हो गई। तो ये प्लान था। तो स्टूडेंट जाते हैं टीचर के पास हाथ में बटरफ्लाई लेके और टीचर को बोलते हैं टीचर मेरे हाथ में बटरफ्लाई है, कैन यू टेल मी इज दिस बटरफ्लाई डेड और अलाइव? जो टीचर थे वो एक्चुअली में बहुत नॉलेजेबल थे, वाइज थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पता है क्या आंसर दिया? He said, the life is in your hands. जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। Similarly, it is true for you also. आपके पास बहुत बढ़िया डाइटिशियन है, one of the best in the market right now. मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, मैं आपको योगा सिखा सकता हूँ, मेडिटेशन सिखा सकता हूँ, बहुत कुछ करा सकते हैं, but ultimately it is in your hands. अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे, you will not take the decision to invest time and money and energy into getting a good lifestyle, nothing will happen. ठीक है? Your life is in your hands. It is Guide My Diet, no? The name of this, है ना? Jagmeet ji, क्या Guide Diet क्या है? I forgot the name. Guide My Diet. Guide My Diet. Okay, they can only guide. Yes. गाइड कर सकते हैं, लास्ट में करना आपको है। सो वी कैन गाइड यू, और मैं और जगमीत जी आई कैन गारंटी वी कैन डू द बेस्ट। अपना 100% हम आपको डाल सकते हैं, पर लास्ट में करना आपको खुद है, और करिए। ठीक है, यू हैव अ शॉर्ट लाइफ। हम सबका जीवन बहुत छोटा है, आपको नहीं पता है कितने दिन का है। तो जितना भी है, एंजॉय द लाइफ, मेक फुल यूज ऑफ इट, बी हेल्दी, मेक अदर्स हैप्पी एंड हेल्दी। ठीक है, with this I would like to end this session. Thank you very much. I really enjoyed my time with you. आपके साथ मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. I hope to see you all again sometime. Thank you very, very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Very much, Lavalji, and I really like the session. And if anybody wants to continue with him, we will be sharing his number. Okay, so your further consults related to your breathing or your meditation sessions, so you can consult him anytime. And these lovely session we will really want to continue further also, but still if you will do on regular basis, then only these things will help you out. So thank you, Laval. Thank you very, very, very much. So I really need all of your feedback. So please आप अपने feedback हमें text कर सकते हैं, okay? So thank you for the session and joining the session. Thank you. Thanks a lot. Hopefully you all have enjoyed the session today.
Yes. Thank you, ma'am. Very much. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye.